equal to 8 is there. Okay, so this one कल का आखिरी अपना last question. So can we write this one as a, it can be written as ये हो गया minus का square is a plus one, so we can write here a plus b whole square is nothing but p square plus 2p I cube plus I square q square minus 6i minus 8 equal to 0 is there. Then afterward, as we know that the value of I square is minus, so we can write here p square plus 2pqi minus q square minus 6i minus 8 equal to 0 is there. Okay, या फिर यस आता आप क्या करो इसमें रियल पार्ट मतलब जिसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वो पार्ट कौन सा है हमारा रियल पार्ट. p स्क्वायर i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, q स्क्वायर i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है और 8 ये हम रियल पार्ट है, तो वी कैन राइट हियर p स्क्वायर minus q square minus 8 in one bracket. Okay, plus I times imaginary part देखो इसमें कौन सा है I वाला पार्ट 2pq then afterward minus 6 equal to कितना 0. right है p square q square and 8 it is a real part, we can write in one bracket plus I times imaginary मध्ये कोणता 2pq I multiplication मध्ये and then minus 6 equal to 0 is there. Now as we know that this 0 is nothing but it is your 0 plus 0 I is there. So can we write it, it is in the form of, okay, इसको अपन क्या लिखेंगे this is also complex number, this is also complex number by equality of two complex number. जब दो complex number equal है तो condition क्या है, पहली इक्वेशन क्या मिलेगी p square minus q square minus 8 equal to 0 है ना. रियल पार्ट ये रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट वन. सेकंड कंडीशन वी गॉट हियर 2pq minus 6 equal to what, that is equal to 0 is there. तो इसमें से तुम p की वैल्यू निकालेंगे 2pq is equal to 6, so pq is equal to 3, so from that we can find the value of q is nothing but 3 by p is there. Okay, यहाँ से q की वैल्यू मिली, what is the value of q, q is nothing but it is equal to 3 by p. Now put the value of q in equation in this equation, इसमें q की वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे p square minus 3 by p मतलब कितना 9 by p square minus 8 equal to 0 is there. Okay, after multiplication इसके डिवीजन में p square है, so divide both side by p square. So what happens now, इक्वेशन कैसे मिलेगी अपने को 3 raised to 4 minus 9 minus 8p square equal to कितना 0. इसको अभी अगर हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये देखो p raised to 4 minus 8p square minus 9 equal to 0. Then you have to factorize it. फैक्टर निकालेंगे बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे. तो कल यहाँ तक हो गया था अपना, यहाँ तक कंडीशन रखने के बाद अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए उनके लिए बता रहा हूँ, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर इज देयर और ये प्लस का 8 इधर के लिए आ गया माइनस 8 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर की वैल्यू कितने ले दी -1, सो बिकॉज़ ऑफ दैट माइनस प्लस कितना हो गया माइनस. नाउ यू कलेक्ट द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये एक रियल पार्ट है और ये एक रियल पार्ट है. तो रियल पार्ट एक ब्रैकेट में I means imaginary part, so 2p iq and then minus 6i, I taking common, so what we got here 2pq minus 6 equal to 0 is nothing but it is the complex number, we can write 0 as a 0 plus 0i. So after equating, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करेंगे तो उस समय इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसके रियल पार्ट के और इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i इज इक्वल टू इसकी i के कोएफिशिएंट के. तो दो इक्वेशन में से q की वैल्यू मिल गई, put the value of q in that equation, you got here something like to. Now you can factorize this equation. इसके फैक्टर निकालेंगे, जगह नहीं है इसलिए अपन इसको ही साफ करके निकालेंगे. यहाँ पर you have to factorize this equation is something like to p raised to 4 minus 8p square minus 9 equal to 0 is there. So what are the factors of that one? It is nothing but 9 minus 1, right? p raised to 4 minus 9p square plus 1p स्क्वायर है ना, -9 में से एक गया -8 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -9.
minus 9 equal to 0. So what happens now here? We have taken here p square common. So what we got here? P square minus 9 plus 1 common. P square minus 9 equal to 0 is there. So either we got here p square minus 9 equal to, or p square plus 1 equal to 0 is there. So finally we got the condition. It is something like to be, देखो यहाँ पे condition क्या मिली अपने? This one, p square minus 9 equal to 0 means p square ये हो गया. और दूसरी condition क्या मिली? p square plus 1 equal to 0. So from that we got here p square is equal to 9. So what is the value of p? P is nothing but plus minus 3 is there. पहले बताया था कोई भी संख्या का स्क्वायर है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस और माइनस इज देयर. क्यों? क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड अगेन माइनस 3 का स्क्वायर यू गॉट 9 इज देयर. ओके, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल. p स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये क्या है? पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अपन ने बोल के आया वाला है कि ये जो pq है दैट बिलोंग्स टू r. क्वेश्चन में मेंशन करे वाला है. क्वेश्चन मध्ये मेंशन केलेला आहे की pq बिलोंग्स टू r है. मतलब pq क्या है? रियल नंबर से. इसलिए कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं रहता है ना. रियल नंबर का स्क्वायर माइनस रहता क्या? नहीं. तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा और 1 का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? +1. सो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. तो इसमें से एक ही केस मिली, p = प्लस और -3. यहाँ पे रीजन क्या है कि p और q कहां से ले रहे हैं अपन? रियल नंबर से. और रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए ये केस नहीं लेंगे. सिर्फ एक ही केस है, p = प्लस -3 is there. Kept in that one. So what is the value of q? Q is nothing but 3 by p is there. 3 upon plus minus 3 is there. 3 3 gets cancelled. We got the value of q is nothing but plus minus 1 is there. So what is the correct answer? I think there is option number A. One answer p is equal to plus minus 3 and the answer of q is nothing but it is plus minus 1 is there. So your correct option is option number A. I think so. So this is the answer of this one. तर आर्यन साळवेने सॉल्व केला ते बरोबर आहे आणि ज्या मुलांना जमलं नाही ते मी बोर्डवर सॉल्व करून दाखवलं. ठीक है. तर ये कल का क्वेश्चन, ये कल का क्वेश्चन था. अब हम आगे प्रोसीड करेंगे. लेट अस प्रोसीड द फर्दर पार्ट ऑफ दैट वन. ओके, so the answer very simple one. Now the next part of that one, ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है. जेईई में पूछे वाला क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन कैसा है, इसका लेवल देखो. If f of x is equal to, question is something like to be a function है. If f of x is equal to, function is asking this manner, x raised to 4 minus 4x cube then plus 4x square plus 10x plus 45. It's a question. Then you ask here, then you are interested to find out then f of 3 plus 2i equal to what? This is the question which is asked here. Options are, first option 12 minus 2i, second option is the 12 plus 2i, third option is the minus 12 minus 2i, and last option is the 2i minus 12. So these are the options given to us and we have to solve this question. Very easy. अब ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, जेईई में पूछने वाला है. तो ये टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो बोर्ड से टोटल हटके ये टाइप के क्वेश्चंस एकदम हटके. तो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन हियर नाउ. अरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी दी वाली है. ये फंक्शन दी वाला है x raised to 4 minus 4x cube plus 4x square plus 10x plus 45. Then we are interested to find out f of 3 plus 2i. फंक्शन की वैल्यू देखिए अपने को निकालने का है. f of 3 plus 2i मतलब f of कॉम्प्लेक्स नंबर. तो f of कॉम्प्लेक्स, जब किसी फंक्शन का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा. ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस f of 3 plus 2i. अभी दोनों को अगर से कंपेयर करेंगे तो दोनों को कंपेयर करने से किसी को ये नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे किसी ने तो भी x के जगह पे 3 plus 2i बिठा दिया है ना. मतलब ये कंडीशन का यूज करके अपने को ये निकालने का है. तो इनिशियली अपन क्या समझेंगे यहाँ पे कोणीतरी हा x च्या जागी हा 3 plus 2i ला बसवलेला आहे. सो कैन वी राइट दिस वन एज अ स्टार्टिंग. यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये जो x है ये है तुम्हारा यहाँ पे 3 plus 2i. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई. So here we can say that after comparing x is equal to 3 plus 2i is there. Okay, अब इसको सॉल्व करेंगे हम. How to solve that one? Very simple one. देखो
कैन वी राइट दिस वन एज x minus 3 रियल पार्ट एक जगह, सॉरी x minus 3 इज इक्वल टू 2i, है ना, ये रियल पार्ट एक जगह कर दिया मैंने, ये रियल पार्ट था इधर लेके आ गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कैसे करेंगे, तो ये क्या हो गया, x minus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2i का स्क्वायर, मतलब कितना 4i स्क्वायर। सो कैन यू राइट दिस वन एज x स्क्वायर, इसका एक्सपांशन बोलो, -6x + 9, और किसी को दिख रहा होगा तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका आंसर हो गया -4। एक्सपांशन सबको मालूम है, a minus b का स्क्वायर कैन बी डन एज a स्क्वायर minus 2ab means 3 to the 6x plus b square means plus 9. The value of I square is -1, so it is -4 is there. So we can write here x square minus 6x इधर आ गया तो 9 plus 4 that is equal to 13, that is equal to 0. It is the important condition. ये आपने को इक्वेशन नंबर 1 देगा. Okay. So it is the important condition here. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देने के बाद अपने को निकालने का f of 3 plus 2i. तो इनिशियल अपना क्या आना चाहिए इसके, कि यहाँ पे ये समझना चाहिए कोई तो भी यहाँ पे ये x की जगह पे 3 plus 2i बिठा दिया, तो we can say that here x is equal to 3 plus 2i. After solving this one, we got the equation something like to be x square minus 6x plus 3i. अब इसका मीनिंग समझ लो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, x square minus 6x plus 13 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट है, तो मतलब उसने क्या किया था, ये जो x is equal to 3 plus 2i ये इसका एक फैक्टर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर रहते हैं, 2 रूट, तो एक फैक्टर क्या मिला, x is equal to 3 plus 2i, तो दूसरा क्या रहेगा, x is equal to 3 minus 2i है। मतलब उसने क्या करा यहाँ पे, एक फैक्टर देने के बाद x की वैल्यू 3 plus 2i देने के बाद उसने यहाँ पे ये उस पे एक्सपेक्टेड था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जिसका ये फैक्टर है, x is equal to 3 plus 2i, फैक्टर और रूट व्हाटएवर में भी, समझे क्या। यहाँ पे डीप में क्वेश्चन पूछने का अर्थ क्या था यहाँ पे, यहाँ पे x is equal to 3 plus 2i जो रखे, it is nothing but it is the solution, किसका सॉल्यूशन, it is the solution of that quadratic equation। हमेशा कैसा आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद अपन उसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, मगर यहाँ पे उल्टा, ऑलरेडी x को कंपेयर करने के बाद 3 plus 2i के बाद सॉल्व करने के बाद हमें एक क्या मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x is equal to 3 plus 2i एक क्या है, रूट है। तो जब तुमको 10th में हुआ होगा कि 3 plus 2i इसका अगर से रूट है, तो दूसरा रूट क्या रहेगा इसका, कॉन्जुगेट, मतलब क्या रहेगा 3 minus 2i। तो ये इसका लेवल था, x is equal to 3 plus 2i कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, इसका मतलब ये है कि x is equal to 3 plus 2i ये इसका एक क्या है, रूट है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब अपने को f of 3 plus 2i निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस याद रखो, 12 minus 2i 12 plus 2i, देखेंगे जो भी आंसर आएगा तुम्हारे पास ऑप्शंस तो रहेंगे बाद में। So now it is a very different type of question। ये कंडीशन आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ये इक्वेशन को ये पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। सो हाउ टू डिवाइड दैट वन, अपना वही 70 के दशक का ये डिवीजन मेथड सबको मालूम है, हाउ टू डिवाइड दैट वन, दिस पॉलिनोमियल x raised to 4 minus 4x cube plus 4x square plus 10x plus 45, ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ये इसके इक्वेशन नंबर 1 से। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज समथिंग लाइक टू बी x square minus 6x plus 13 is there। Now as we know that the division of two polynomials, सबको मालूम है दो डिवीजन का पॉलिनोमियल है ना। So what is the polynomial डिवीजन बोला इसका, कितना आ जाएगा इसका, यस टेल मी नाउ, कितना आ गया, पहले x raised to 4 होना, तो मल्टीप्लाई बाय x square, so it gives us x raised to 4 minus कितना आ गया अभी, minus 6x into x square is nothing but minus 6x cube, then afterward plus 13 into x square, ये कितना आ गया, 13x square is there। okay, ये सबको डिवीजन तो सबको आएगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज द साइन, इट इज माइनस, इट इज प्लस, इट इज माइनस इज देयर, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, ये कितना आ गया 2x क्यूब, और माइनस 13 में से 4 गया, कितना आ गया माइनस 9x स्क्वायर, और नीचे के टर्म्स एज इट इज प्लस 10x प्लस 45 remains as it is here। okay, so while you got the equation 2x cube minus 9x square plus 10x plus 45। अब दूसरा टर्म बोलो, पहली टर्म यहाँ पे 2x क्यूब है, तो मल्टीप्लाई बाय प्लस और माइनस, तुम्हारे दिल पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सबको आता, तो समझो हमने प्लस से ले लिया,
प्लस 2x से मल्टीप्लाई करा तो 2x into x कितना आ गया 2x क्यूब माइनस 2 into 6 it is nothing but 12x square and 2x into 13 it is nothing but 13 to the 26x is there. So finally we change the sign, it is minus, it is plus, it is minus is there. This one gets cancelled. Now 12 minus 9. What you got here? 12 minus 9. It is nothing but it is something like to me. बराबर है क्या? Yes. 6 to the 12. 12x square and then plus 26 is here. यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा -13 plus 4x इक्वेशन बराबर है क्या अपने हाँ यस -12x से कितना आ गया ये इट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और यहाँ पे 10 में से -26 दिया तो कितना आ गया -16x इज देयर और ये प्लस का 45 एज इट इज। अब जैसे कि इसका लास्ट टर्म जो है इसका लास्ट टर्म कितना है लास्ट टर्म है इसका 3x स्क्वायर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into x square and then minus 3 6 18x ओके और यहाँ पे 13 3 कितना 39 इज देयर। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका साइन चेंज करो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया 18 में से 16 गया कितना आ गया 2x और 45 में से कितना आ गया 6 इज देयर 2x plus 6 लिसन केयरफुली ये तो पांचवी छठी का क्वेश्चन है दो पॉलिनोमियल के डिवीजन ये 4 डिग्री के पॉलिनोमियल है और सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल है तो इसको इससे डिवाइड तो सबको आएगा सॉल्व करने के लिए इसमें कोई खास बात नहीं है डिवीजन सबको आता दो पॉलिनोमियल का तो लास्ट में आंसर आया 2x + 6 इसको पर फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जो तो इसका पहला टर्म कितना है x² और उसकी डिग्री कितनी है x सो स्टॉप हियर यहां तक इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये अगर समझ में आया होगा तो सबसे पहले यहां से देखो इसको अपन मिटा देंगे तो यहाँ पे x = 3 + 2i करने के बाद रियल पार्ट एक जगह स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके अपने को कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिली जो इक्वेशन कोऑर्डिनेट मिली उसको अपन क्या करेंगे पॉलिनोमियल से डिवीजन करेंगे डिवीजन करने के बाद ये आया नाउ सी हियर नाउ इन दैट कंडीशन हियर आप सबको मालूम है जब दो पॉलिनोमियल के डिवीजन है हाउ टू राइट दिस वन सो बेसिकली द वन इट इज नथिंग बट यू कैन राइट हियर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder is there. We can write here it is something like to be here dividend is equal to divisor into quotient plus remainder is there. So first we write dividend म्हणजे ज्याला आपण भाग दिलं याला what is dividend here x³ minus 4x³ plus 4x square plus 10x plus 45 is equal to it is your dividend divisor म्हणजे ज्याला आपण भाग दिलं x² minus 6x plus 30 divisor क्वेश्चन मींस इसके ऊपर का है ना क्वेश्चन मींस व्हाट क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर का मतलब कितना it is nothing but there is no space is there we can write here x² plus 2x plus 3 and plus remainder is nothing but 2x plus 6 is there. So what happens now as we know that the value of x² into x into 4 what happens now here plus 2x plus 6 and this one nothing but x² plus 2x plus 3 is there. So what happens now here it is nothing but the value of x² minus 6x plus 13 it is nothing but 0 from equation number 1 देखो अपन इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी थी 0 0 into that is equal to 0 so what remaining here 2x plus 6 इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2x plus 6 is there what is the value of that function 2x plus 6 now if it is 2x plus 6 what is it now we can write here x³ minus x raised to 4 sorry x raised to 4 minus 4x³ plus 4x square plus 10x plus 45 that is equal to we can write here 2 as it is and the value of x what is the value of x x की वैल्यू अपन निकालने वाला है x is nothing but 3 plus 2i is there so we can write here 3 plus 2i and then plus 6 remain as it is after solving we got here 2 3s are 6
plus 4i and then plus which one is remaining here? 6 is there. And finally, we got the complex number is something like to be what is the complex number here? 6 plus 6, 12, and then 12 plus 4i. It is the final complex number of that one. So we can say that the value of f of 3 plus 2i is nothing but 12 plus 4i is there. It is the value of that complex number. 12 plus how much? It is nothing but 4i. It is a very important question. It is asking JEE examination. So I hope you got that one. एकदम simple है. Division करने के बाद what is the method here? Formula सबको मालूम है. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend मतलब जिसको अपन ने divide करे x raised to 4 ये पूरी equation is equal to divisor. Divisor मतलब कौन सा? इससे divide करे. Into quotient मतलब ये दो के वर्सा और remainder मतलब ये बाकी. तो इसको इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से 0 0 into पूरा कितना हो गया 0. सिर्फ क्या बचा फिर 2x plus 6. तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है 2x plus 6 मगर अपने को क्या होना कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में. सो द वैल्यू ऑफ दैट इज नथिंग बट 2 into रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x by 3 plus 2i. x के जगह पे 3 plus 2i आ गया. प्लस 6 रिमेन एज इट इज 3 to the 6 2i into 2 4i and then plus 6 6 plus 6 it is nothing but 12 plus 4i. So it is the answer of that one. I think 12 plus 4i is the correct answer. Options में मेरे ख्याल से अपने ऑप्शन थोड़े गलत हो गए ना. ऑप्शन में चेक करेंगे अपन. नहीं डिवीजन के लिए दूसरी मेथड तो नहीं है ना. ये सबसे सिंपल है और ये अपने 5th और 6th स्टैंडर्ड में वाली है. ऐसी कोई खास बात नहीं डिवीजन में है ना. इसमें डिवीजन में क्या खास बात है? ये पॉलिनोमियल से तुम इसको डिवाइड करेंगे है ना. तो क्या प्रॉब्लम है? इसका पहला टर्म x raised to 4 तो पहले इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. जो टर्म बच गए इसका हमेशा पहले टर्म देखने का. इसका 2x क्यूब है तो यहाँ पे कितना है 2x से मल्टीप्लाई करने का. प्लस माइनस करके इसका पहला टर्म 3x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 3 से करो. खाली पहला टर्म देखने का है. बाद में जो बचेगा सब बचेगा. Okay, so it is a very most important question asking the. So answer will be 12 plus 4i. I think option में थोड़ा गलती होगी. टेक्स्ट बुक में भी गलती है. इसका करेक्ट आंसर यही है. 12 plus 4i is the correct answer for that one. I hope you got that one. Very simple question asked here. So we proceed to further part of that one. तुमसे objective थोड़ा check करा. Correct answer is 12 plus 4i. Now we proceed to the next part of that one. So what is the next part here? Next question is nothing but it is again important question. It is also asked in examination. तो क्या अपन देखने वाला था. क्वेश्चन ऐसा है. It is again important question. तो ये समझ में आया? I hope so. ये समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो बोलो अपन इसको बाद में रिपीट करेंगे मगर अभी नहीं. ठीक है. अभी के लिए इतना ही काफी है. Now we proceed to the next part of that one. So what is the next part here? Next part is something like to be question ऐसा पूछने वाला है कि if it is again important question x plus iy. I think ये बोर्ड में होने वाला है अपना क्वेश्चन. ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था. x plus iy का पावर 1/3 is equal to a plus ib. Then the question is asked something like to be x by a plus y by b is equal to k times a square minus b square. I think ये क्वेश्चन बोर्ड में वाला है. तो क्वेश्चन उससे पूछा कॉमा k is equal to. तो उसमें k क्या है? कॉमा k is equal to पूछने वाला है. क्वेश्चन मार्क मतलब इसमें ऑप्शंस दिए वाले. ऑप्शंस क्या है? इसका पहला ऑप्शन इज नथिंग बट -4, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2 इज देयर. तो देखो इसमें कितना और क्या आंसर आएगा इसका. सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलरेडी डन इन बोर्ड. देखो अभी कैसे करेंगे इसका अपन. ओके, टेक वन चॉक पीस हियर. ओके, सो this is the condition. X plus iy raised to 1/3 is equal to a plus ib is there. तो सबसे पहले इसका 1/3 मतलब क्यूब रूट.
सबसे पहले इसका क्यूब रूट हटाएंगे, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब निकालने के बाद ये कितना आ जाएगा, x प्लस आई का पावर 1/3 का पावर 3, और यहाँ पे कितना रह जाएगा a प्लस आई बी का पावर 3 से। ओके, सो ये 3 से 3 कैंसल, कितना है तुम्हारे पास x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का क्यूब इज देयर। ओके, ये फर्स्ट स्टेप। क्योंकि तो कभी भी अगर से क्यूब रूट है और स्क्वायर रूट है, तो सिंपली अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, तो 2 के कैंसल। उसी तरीके से क्यूब रहा तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों बगल से क्यूब लेना पड़ेगा, ये टर्म का भी क्यूब और ये टर्म का भी क्यूब। ऐसा करने से 3 कैंसल एंड यू गॉट द इक्वेशन। नाउ अब तुमको ये मालूम है, एक बाजू में बताता, इसका एक्सपांशन तुमको मालूम है, x प्लस वाई का क्यूब का एक्सपांशन बोलो, क्या एक्सपांशन, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस कितना y क्यूब इज देयर, इट इज एक्सपांशन ऑफ x प्लस y क्यूब। सो कैन वी राइट दिस वन एज अ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये भी a प्लस ib क्यूब है, यहाँ पे a मतलब x और y मतलब कितना है ib। सो इसका एक्सपांशन कैसे लेंगे, देखो x प्लस iy इज इक्वल टू a क्यूब, x क्यूब की जगह पे a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b, ये a स्क्वायर इनटू कितना ib प्लस 3 टाइम्स ab स्क्वायर, ab स्क्वायर मतलब a इनटू i स्क्वायर b स्क्वायर इज देयर, एंड लास्टली प्लस i क्यूब इनटू b क्यूब इज देयर, इसका क्यूब i का क्यूब और b का क्यूब। इट इज बाय यूजिंग दैट फार्मूला x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इज देयर, x प्लस y का क्यूब के हिसाब से इसका एक्सपांशन ये। नाउ हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। तो ये तुम्हारा आ गया x प्लस iy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ib, यहाँ पे सबको मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1, इस कारण से ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो सिर्फ कितना बच गया यहाँ पे 3 into a square b square is there, right? I square की वैल्यू -1, तो ये माइनस प्लस माइनस, so value will be 3a into b square, and लास्ट में इसकी वैल्यू बोलो, i क्यूब की वैल्यू सबको मालूम है, जिसको मालूम नहीं, जो नए हैं उनके लिए i क्यूब की वैल्यू रहती i square into i का पावर 1, the value of i square is -1 into i, तो i क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, -i is there, the value of i cube is -i, so we can write here i cube मतलब ये आ गया -i into b cube remain as it is। ओके, समझ में आया, ये a cube 3a square ib as it is, यहाँ पे i square की वैल्यू माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 3a b square, और ये i cube की वैल्यू कितनी है -i, तो ये माइनस प्लस माइनस i b cube is there। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करेंगे, क्यों, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो क्या करेंगे, देखो रियल पार्ट को रखेंगे जिसको, तो क्या है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर रियल पार्ट, एंड टेक द इमेजिनरी पार्ट इन दैट वन, अनदर ब्रैकेट i टाइम्स 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इज देयर, राइट है, a क्यूब रियल पार्ट माइनस 3 स्क्वायर भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में, इमेजिनरी ये i इसको मल्टीप्लिकेशन में, तो 3a स्क्वायर b माइनस i इसके मल्टीप्लिकेशन में b क्यूब इज देयर। नाउ हियर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो व्हाट वी कैन से दैट हियर x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, एक कंडीशन 3ab स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन y is equal to 3a square b minus b cube is there, it is the second condition। okay, real part is equal to real part, imaginary part is equal to imaginary part। okay, sort में कैसे दैट, देखो यहाँ से a कॉमन निकलता, एक अगर से कॉमन निकाला मैंने तो कितना बचा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, हाँ a कॉमन निकालने के बाद, तो इसमें से मुझे x by a की वैल्यू मिली, कितनी मिली
a square minus 3b square is there. It is the value of x by a. यहाँ से देखो b कॉमन अगर से निकाले तो कितना मिलेगा 3a square minus b square is there. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला y by b is equal to 3a square minus b square is there. और अपने को निकालने का क्या है, we are interested to find out what is the question. Question में था x by a plus y by b is equal to k times a square minus b square. So can we write this one as a, ये दोनों की एडिशन करेंगे अपन यहाँ पर, तो क्वेश्चन के हिसाब से can we write this one as a x by a plus y by b दोनों की एडिशन, तो कितना आएगा वो a square minus 3b square plus 3a square minus b square, तो कितना आएगा देखो a square 3a square 4a square और minus 3 में होता है कितना 4b square. Taking 4 common a square minus b square is there. कंपेयर करो, कंपेयर अगर से करेंगे तो यहाँ पे k के बेस पे कितना है 4. So what is the value of that one? K is equal to 4. It is again important question. So option number I think B option is there. अपने option क्या थे इसमें 4 minus 4 3 or 2. So B option is correct one. It is nothing but 4 is there. I hope you got that one. It is very simple one. Which option is there? The screen is back. Right? So it is the answer of that one. K is equal to 4 is there. Is there any problem in that one? कुछ ब्लर वगैरह कुछ हो रहा है इसमें स्क्रीन पे, some student getting messages here. Any कोई प्रॉब्लम है क्या देखने में? Yes, tell me now. Blur, okay. We check here. क्यों ब्लर हो रहा है चेक करेंगे इसका अपन एक ही मिनट में. Clear now? Okay, now it is correct one, I think so. So now the next question. Again, we put up one important question. Okay, so this is the answer. Now we proceed to the next question. Again, important question. आज के पूरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. हर क्वेश्चन तुमको हर टेक्स्ट बुक में मिलेगा, सिंगल में मिलेगा, तुमको एडिशनल में मिलेंगे, हर किसी में तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है. So now we proceed to the next question here. If question is something like to be 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2 sin square theta equal to is purely imaginary. Is purely imaginary. Purely imaginary. Then question asked here. Then theta is equal to. इसका theta क्या है? Then theta is equal to. अब मैं ऑप्शंस अगर से दूंगा तुमको तो इसमें ऑप्शंस समझ में नहीं आएंगे. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है ना? तो इसका मैं तुमको डायरेक्ट आंसर निकाल के बताऊंगा और वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आंसर रहेगा. ठीक है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया यहाँ पे, तो तुम्हारे समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि तो वो कांसेप्ट थोड़ा पहले समझाना पड़ेगा, फिर उसका आंसर तुमको लाना पड़ेगा. अभी ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछे वाला है दूसरे एग्जाम में, जेईई में नहीं, मगर नेक्स्ट दूसरे एग्जाम में पूछे वाला है. क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ में आया कि 3 plus 2i sin theta 1 minus 2 sin square theta is purely imaginary number. अब तक ये कंसेप्ट मालूम है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है. इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है. इसका मतलब इसका रियल पार्ट इक्वल टू 0. सिर्फ हम इसका रियल पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, थीटा का सॉल्यूशन. लिसन केयरफुली है, क्या बोल रहा है यहाँ पे समझ के लो कि ये का प्योरली इमेजिनरी नंबर है. इसका मतलब यहाँ पे रियल पार्ट 0 है. जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कौन सा फॉर्म में, रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में. इफ इट इज नाउ इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इस कारण से इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0. रियल पार्ट को 0 करके हम क्या निकालेंगे, थीटा की वैल्यू. थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अभी सबसे पहला काम जो हमें पहले दिख रहा है वो लिखेंगे अपन. पहले इसको उठाओ और यहाँ पे फटक दो. 3 plus 2i sin theta
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको मालूम है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, जो डिवीजन का है इसका क्या करते हैं हम कॉन्जुगेट लेते हैं, है ना। व्हेनेवर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इन डिवीजन वी हैव टेकन द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या है, यहाँ पे आई विल चेक द क्वेश्चन हियर whether it is sin square theta or sin theta is there. I have to check here. In that question only sin theta is there, square is not there, only sin theta is there. So now इसका डिवीजन करेंगे अपन तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, देखो 1 plus 2 sin theta divided by 1 plus 2 sin theta। सबको मालूम है कॉन्जुगेट ये अगर से एक मिनट गेटिंग समथिंग रॉन्ग हियर, है ना, इमेजिनरी पार्ट आएगा। नजर आ रहा है क्या सबके ब्लर, सम स्टूडेंट गेटिंग सर क्या है डिनो काय अडचण आहे का, काही दिसत नाही का तुम्हाला याच्यामध्ये, आहे का काय मुलांचा मेसेज यायला कंटिन्यू, ठीक आहे बघा इथे पुन्हा तुम्हाला समजायला नाही दिसलं बघा, आता नाव क्लिअर आहे, ओके दिसायला